हाय फोक्स, वेलकम टू इनसाइड ज्ञान। और आज का टॉपिक है एक्सचेंज के किस्से। सो आई एम अखिल, मेरे साथ है आज सिड। एंड फॉर पीपल हु डोंट नो दिस, वी वेंट टू आई एम बैंगलोर टुगेदर। और जो एक कॉमन चीज है जो एंड वी आर डिस्कसिंग दिस टुडे इज वी वेंट टू आवर एक्सचेंज आल्सो टुगेदर। तो बिफोर वी स्टार्ट, सिड, तेरा क्या व्यू है ऑन द एक्सचेंज इन जनरल? Yeah, honestly, exchange is the most memorable time from the 2 years I had at IMB. If I have to repeat one part of those 2 years, that has to be the exchange term. I'm willing to let go of everything else. And I also think that exchange is a lot more than just traveling across Europe. It teaches you a lot more. During that time of those 3 months between September to December, लगभग 300 बच्चे across ABC campuses are in Europe at that time. And Even Lucknow now. even Lucknow now. And MDI. हाँ, Other MDI campuses. तो वो अदर कैंपसेस भी है। ऑब्वियसली खर्चा होता है, nobody is denying that, so that is a very important consideration to take. But even then, we at least and most of the students are traveling across Europe on a shoestring budget. हम backpacking कर रहे होते हैं most of the time। जो 300 बच्चे हैं, they are sharing accommodations. मैं जब फ्रांस गया था तो मैं इसके घर पे रुका था, ये जब जर्मनी आया था तो ये मेरे घर पे रुका था। इम्प्रॉम्प्टू आइटनरीज बनती है, लास्ट मिनट प्लानिंग होती है, तो दैट एक्सपीरियंस टीचेस यू अ लॉट इन जनरल अबाउट एक्चुअल मैनेजमेंट। True. मतलब वो एक आई वुड थिंक ऑफ इट एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन मैनेजमेंट। For sure. I mean, especially because of the resource constraints. Some of those resource constraints are self-imposed. सेल्फ इम्पोज्ड। Honestly- जैसे इन सालों ने मुझे आई रिमेम्बर, मेरे पास तो थोड़े बहुत पैसे थे क्योंकि मैं वर्क एक्स के बाद आया था, लेकिन इनके चक्कर में वी यूज्ड टू ईट ओनली ब्रेड एंड ड्रिंक ओनली मिल्क। And the milk was rationed. And the I milk was was very rationed. तो particular काफी about काफी who's गरीबों की having तरह how रहते much हम। milk. So yeah, so not just the resource optimization, planning, scheduling. You get to know a lot of folks in a more informal setting because on campus, life is about the clubs you're part of or the case studies you are doing together or the courses you pursue together. But this was an actual no pressure situation. Bonding exercise. Yeah, Bonding it was a exercise. good bonding exercise. In fact, I don't think now ever it would be possible to have this 3 month break in life. Hmm. Exchange was a 3 month break of out from all the stress, all your ambitions and goals, purely with the agenda to enjoy. If you go to a good college, even being a part of some of those classes that you attend, and some people actually have 100% attendance, like I did, being part of those B schools helps you also appreciate the difference between the education in Indian B schools versus the B schools there, what you missed out on, and yes, what were the good parts that we have in our Indian B schools that were not there. नहीं, सही बात है, इसका ये पर्सपेक्टिव होगा बिकॉज एज यू सेड यू हैड 100% अटेंडेंस। मेरी भी यूनिवर्सिटी अच्छी थी, आई आल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ मैनहाइम बट इट हैज 0% अटेंडेंस, तो मैंने एक भी क्लास नहीं लगाई। stuck to the 0% rule. मेरी 0% रूल था तो आई फॉलो दैट रूल। चलो अब मैं तेरे को किस्से सुनाता हूं एंड यू वुड नो सम ऑफ दीस ऑलरेडी। Yeah. लेकिन मैं एक दो किस्से तेरे को सुनाना चाहता हूँ ऑन व्हाट हैपेंड टू मी ऑन एक्सचेंज which was unfortunate, but now when I look back it was pretty funny as well. Yeah, back then it hurt a lot. Back then it hurt a lot. तो पहला किस्सा है when I was going from Prague to Budapest, I think, और हम यूरो रेल में थे। मैंने हमारी ओवरनाइट ट्रेन ली थी। वी वर अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल, आई थिंक। कॉन्टेक्स्ट इसलिए जरूरी है उसमें कि प्राग हम इसलिए गए थे क्योंकि हमको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह, हमको स्काई डाइविंग करनी थी। और हमने प्राग में इनफैक्ट हमने अपनी अकोमोडेशन एक्सटेंड भी करी थी क्योंकि मौसम कंड्यूसिव होना चाहिए फॉर द स्काई डाइविंग। इवन इफ इट इज a bit cloudy, they don't let you jump. And at that time it was actually rainy in Prague, so we actually waited for 3 days to so that we are allowed to jump. हमने 3 दिन तक कोशिश करी थी, हम जंप नहीं कर पाए थे। उसका रिजल्ट ये निकला कि I had a lot of cash in my wallet because that center actually accepted only cash. और हमने ट्रेन ढंग की ली हुई थी, ठीक है, क्योंकि ओवरनाइट थी तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ हमने कंजूसी करी थी। We actually had specific cabins. अब उस केबिन में चक्कर ये था कि it was a glass door. तो केबिन के अंदर क्या था वो सब दिखता था। हो सकता है कर्टन वॉटन का इशू हो, लेकिन हमने लगाया नहीं था ये। हम भी स्टड थे। In retrospect, I would guess that was the case. That was the case. लेकिन वो ग्लास डोर था। The person I was sharing the cabin with, वो somehow luckily बस ये हो गया कि वो अंदर की तरफ सोया and I was sleeping on the outside end of the bed. So I was totally exposed to anyone looking through the glass door. और मेरे जेब में वॉलेट था जीन्स में, और
क्योंकि उसके अंदर कैश था, वो काफी अलग से दिख रहा था वॉलेट, Plus इट वाज you बल्जिंग wore- आउट। Plus you wore tight skinny I jeans. I wore tight skinny. Don't compromise on fashion. Never compromise on fashion irrespective I used to of how wear much of a shoestring budget you have. tight skinny jeans to impress the European girls, तो वो तो था ही। लेकिन हमने यार अपने हिसाब से प्रिकॉशंस ली थी। केबिन था पर्सनल, we had locked the door. Oh, you had locked We the had door? locked the door. I didn't know that. नहीं, we had locked the door and then we went to sleep. अब मैं सुबह जब उठा, हाँ. बस ठीक है, मतलब कुछ रियलाइज ही नहीं किया मैंने कि सुबह मैं उठा, ठीक है सब, मैं पैक कर रहा था जब सामान, तो मेरा वॉलेट ऊपर से गिरा, ठीक है, ऊपर से गिरा नीचे। Uh-huh. तब मेरे को लगा यार ये वॉलेट तो मेरी जेब में ही था, मतलब ये ऊपर कैसे पहुंचा? तो मैं तब मेरे को थोड़ा सा चमका कि कुछ पंगा है। देन आई ओपन माय वॉलेट एंड ऑल द कैश वाज गॉन। And how much cash was it? I don't remember, लेकिन I काफी think hefty it was amount. around I think it was 35,000. 30,000. 400 euros equivalent. I think it was which is 35,000. 35,000 इंडियन रुपीस। Yeah. पूरा कैश निकल गया था। Hmm. और तब मेरे को चमका, तब फिर मैंने अपने दोस्त को बोला यार इसका कैश कहाँ गया मेरा? तब उसकी फटी, ठीक है, वो तो साला लकी था कि ही वाज मतलब ऑन द इनसाइड एज, तो उसने भी अपना सब चेक किया, ही वाज फाइन। तो हुआ क्या है एक्चुअली, दे केम, दे सॉ मे बी द बल्ज इन माय पॉकेट, द वॉलेट इन माय पॉकेट। उसने वायर के थ्रू लॉक खोला, Oh. क्योंकि वो वायर के थ्रू समझ लॉक गया, खुल समझ जाता गया, था। समझ गया। वायर के थ्रू लॉक खोला, वो घुसा अंदर, उसने मेरा वॉलेट निकाला, उसने कैश निकाला, ऊपर फेंका वॉलेट। थैंकफुली वॉलेट नहीं लेके गया क्योंकि उसके अंदर लाइसेंस वगैरह था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। फिर उसने वापस बंद किया लॉक और निकल गया। अच्छा. तो आई वुड जेन्युइनली डोंट थिंक कि मेरी इतनी गलती थी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैं वो वॉलेट छुपा के रख सकता था, वो मेरे वॉलेट, और मैं इतना एक्सपोज होके नहीं सो सकता था, बट इट वाज नॉट एज बिग अ मिस्टेक मेरे हिसाब से। But you were basically part of practical experiment where a practitioner was giving you an opportunity to appreciate his skills in a way. वही तो, वो उसमें मेरे ख्याल से गिनी पिक था, लेकिन वो हाँ. काफी ही प्रोफेशनल थीफ था। बहुत दुख हुआ था यार उस दिन। 35,000 रुपए तुम्हारे एक दिन में निकल जाए, और मतलब स्टूडेंट ही थे यार, तो ऐसी बात नहीं है, मतलब जाते स्टिल अ बिग अमाउंट, और उस समय तो बहुत बड़ी अमाउंट थी यार। तो खैर ये किस्सा था जब मेरे को लगता है कि मेरी इतनी गलती नहीं थी। Yeah, clearly, I mean, the person was skilled. I could be given benefit of doubt, लेकिन अब मैं वो किस्सा सुनाऊंगा जिसमें मैंने genuinely हगा था। जिसमें I don't think we can justify that in any manner। ये हमारी गलती नहीं You है। and the group were infamous on campus for some time. For some time। वो किस्सा ये है कि and that happened in Prague। Hmm. वो that was in Prague the So day two investment bankers and one consultant walked into Prague. we walked into Prague। ये joke की starting है। We got out of the train station, और ट्रेन स्टेशन पे उतर के हम ये डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि प्राग में अपनी करेंसी चलती है, तो उसमें अपने वो यूरोज नहीं चलते, तो उसमें हमको अपने यूरोज एक्सचेंज करने थे। तो वी वर लुकिंग एट द प्लेस इन द एयरपोर्ट टू गेट दैट करेंसी एक्सचेंज। Czech krona. हाँ करेक्ट, चेक क्रोना। और हम उसमें हम ये देख रहे थे कि क्या एक्सचेंज रेट है, क्या कमीशन है, वो सब हिसाब लगा रहे थे। ठीक है, हम 3 लोग थे, एज यू मेंशन, 2 इन्वेस्टमेंट I was in part. बैंकर्स, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड वन कंसल्टेंट वो प्रेजेंट हो गया था क्योंकि उसका पीपीओ था। Correct. तो हम एक्सचेंज रेट ढूंढ रहे हैं, तब तक वो जो दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकर था, मैंने नहीं की थी डील हाँ, हाँ, हाँ। वैसे, जो दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकर था उसको एक वेल ड्रेस्ड, आई थिंक इंडियन लुकिंग मैन था, वो इंडियन ही था शायद, वेल ड्रेस्ड मैन उसके पास आता है और कहता है यार तुमको करेंसी एक्सचेंज करनी है? उसने कहा हाँ करनी है। उसने कहा मुझे भी करेंसी एक्सचेंज करनी है अपनी। ठीक है, मैं एक्सचेंज करने आया था, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तो कमीशन बहुत हाई है, तो तुम मुझे दे दो और मैं तुमसे ले लूंगा क्रोना, तुम मेरे को यूरो दे दो। उसने कहा सही लग रही है डील। उसने कहा कितना तुम कमीशन दोगे? कहते नहीं कमीशन तो कुछ नहीं दोगे यार, तुम हाथों हाथ जितना वो कमीशन हटा दो, तुम जो एक्सचेंज रेट है उस पर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसने कहा बहुत बढ़िया। खैर उसने ये हमको कहानी सुनाई आके, हमने कहा बहुत सही है यार, ठीक है जेन्युइन आदमी लग रहा है, अच्छा खासा वेल ड्रेस्ड। उसने दूर से दिखाया था क्योंकि उसने बात करी थी, उसने कहा वेल ड्रेस्ड लग रहा है और लॉजिकल भी है, वो भी कमीशन बचा रहा है, मैं भी कमीशन बचा रहा Makes हूँ, sense. तो एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर उसने कहा ठीक है चलो एक्सचेंज करके आते हैं। मैंने कहा आप चलना कहाँ है? उसने कहा नहीं मेरी यहीं पे शॉप है पास में, तो वहीं पे चलते हैं, वहाँ पर एक्सचेंज कर लेंगे। हमने कहा ठीक है चलो। फिर हम उसके पीछे पीछे वो करने लग गए, जाने लग गए एक्सचेंज करने के लिए करेंसी। फिर उसने कहा बाय द वे ये मेरा कार्ड है। उसने हमको वेस्टर्न यूनियन का कार्ड दिया। हाँ. हमने कहा ठीक है वेस्टर्न यूनियन में काम करता होगा, और उसकी वहीं हम जा रहे थे वेस्टर्न यूनियन की शॉप पे। तो फिर थोड़ा सा हल्का सा खटका कि पहले तो बिजनेसमैन बोल रहा था ये, फिर हाँ. अचानक से वेस्टर्न यूनियन और की दुकान, उसकी दुकान if है। he is there permanently then हाँ लेकिन हमने इतना सोचा नहीं था क्योंकि हमारा कमीशन बचा था, लेकिन ही एक्चुअली गेव अस अ वेस्टर्न यूनियन का ऑफिशियल कार्ड आल्सो। तो हम उसके पास पीछे पीछे जाए थे। उसने कहा वैसे तुमको एक्सचेंज कितना करना है? अब मेरे को अमाउंट याद नहीं है, हम तीनों के बीच में शायद इतना ही था, कुछ 30,000 था 30,000 का तीनों के उसमें भी? बीच में। अच्छा, मतलब it was 10,000 20 each। per person, I हाँ. remember, हाँ. 10,000 ईच था, तो हमने कहा 30,000 के आसपास टोटल होगा। उसने कहा ये तो मेरे पास अभी पड़ा है, तो शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, अभी ले लो।
हमने कहा ठीक है। Smart. तो उसने फिर ये सब एक साथ ही होता है ऑलमोस्ट। उसने काट दिया, काट देते देते उसने हमसे पूछा कितना करना है एक्सचेंज। हमने कहा टोटल 30,000। तो हमने एक्सचेंज कर लिया। हमने जैसे ही हम नोट गिन रहे थे, हमने उसने नोट गिनने तक की वेट भी करी। उसने कहा ओके, हमने कहा ओके, और फिर वो कट लिया। ठीक है, फिर हमको ये चमका यार। मैंने उससे पूछा, उसने तेरे को बिजनेसमैन नहीं बोला था वेस्टर्न यूनियन का कार्ड क्यों? कहता हाँ यार पता नहीं। फिर हमने यार, फिर हमको थोड़ी सी हमारी फटने लग गई कि यार शायद कुछ पंगा हो गया। और प्राग में वो सारे ब्रेक क्यूबिकल्स होते हैं जहाँ पर एक्सचेंज होते हैं करेंसी। तो एक सामने हमें दिख रहा था, तो हम वहाँ गए चेक करने। हमने कहा कि ये हमको करेंसी मिली है, इज इट जेन्युइन? उसने बोला कहाँ से मिली है? हमने कहा हमने यहीं से किसी स्ट्रीट पे किसी से एक्सचेंज करी है। कहते हैं ये दिस इज नॉट प्राग करेंसी, दिस इज रूबल्स। तो हमारी काफी फट ली अब। और तब हमें पता भी नहीं था कि रूबल्स का एक्सचेंज रेट क्या है, कितना नुकसान हुआ, कुछ हवा ही नहीं थी। मैंने कहा कैन यू एक्सचेंज इट फॉर अस? कहते नो वी कांट, प्लीज गो फ्रॉम हियर। उसको पता नहीं हम पे शक हो रहा था क्या हो रहा था, लेकिन उसने बस बता दिया कि रूबल्स है, लेकिन डिड नॉट एंटरटेन अस फर्दर। हमने कहा चलो ऑफिशियल सेंटर पे जाते हैं। कोई एक बड़ी सी पूछ-पाछ की एक बड़ी सी जगह पे गए जहाँ पर मल्टी करेंसी एक्सचेंज होती है। फिर हमने उसमें देखा कि अच्छा रूबल्स का रेट प्राग के इक्विवेलेंट इतना बुरा नहीं है। नुकसान तो हुआ था, लेकिन इतना बुरा नहीं है। 50% टाइप्स रिकवर हो जाता। Oh really? 50% रिकवर हो जाता। अच्छा। ठीक है यार, फिर तो चलो ठीक है, पागल तो बन गए, आगे लेकिन तो इतने गए। पागल नहीं बने हैं। 50% का ही नुकसान हो रहा है, तो 15,000 5,000 का पर पर्सन नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमने कहा कि ये रूबल्स है हमारे पास, इसको आप क्रोनास में कन्वर्ट कर दो। हाँ। कहते हैं ये रशियन रूबल्स नहीं है, ये बेलारूस रूबल्स। Oh shit! फिर हमको पता चला ये रशियन रूबल्स भी नहीं है, बेलारूस के हैं, और बेलारूस रूबल्स की जीरो वर्थ है। तो वो तो कन्वर्ट करके, वो कन्वर्ट करता भी नहीं। उसने कहा कुछ बताया, उसने कहा नेट वो मतलब 10 रुपए थे मेरे ख्याल से। वो इंडियन करेंसी के वर्थ में 10 रुपए थे। तब हमको पता चला कि कितना हमारा कट चुका है बहुत बुरी तरह। ठीक है, अब क्या करें? फिर रोए धोए थोड़ा सा चक्कर, पुलिस वगैरह के पास भी गए थे मेरे ख्याल से। पुलिस ने कहा ये बहुत आम बात है यहाँ पर, यू शुड बी विजिलेंट। और आप क्या करते हैं? तो आई एम प्लानिंग टू बी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर। अबे तो इससे ही तो हमें मोटिवेशन मिली कि इसके बाद हम पढ़े लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे, ताकि अगर नुकसान हो भी जाए तो इतना ना चुभे। तो क्या तब फिर हमको, और तब तक इन जैसे लोगों को हमने बता दिया था, और इन जैसे लोगों ने पूरे कैंपस में फैला दी थी। तो पूरे कैंपस को पता था कि लोगों ने फैला दी थी, पूरे कैंपस को पता चल गया था ये 3 लोग बेवकूफ बने हैं। लेकिन हमारे कारण बहुत लोग बचे, क्योंकि वी वर द फर्स्ट वन जिनको कटा। took one for the team। तो लोग बच गए, लेकिन इनफेमस बहुत हो गए थे कि कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं। और टेक्निकली प्लेसमेंट्स अच्छी हुई है, टेक्निकली रैंकर्स भी है, लेकिन बेवकूफ है। तीनों ही टॉप 10 रैंकर्स। तीनों ही टॉप 10 में भी थे, तो बेइज्जती बहुत हो गई थी उसके कारण। तो अल्टीमेटली हमने ये स्टोरी एंड कैसे करी? लुट तो गए थे, और हमारे पास बेलारूस रूबल्स वो सारे 1000 या 10,000 डिनोमिनेशन के थे। ठीक है, तो फिर हमने 10,000 बेलारूस रूबल लिया या 1000 लिया होगा, 1000 बेलारूस रूबल एक हाथ में लिया, लाइटर से जलाया और उसकी वीडियो बनाई थी, और फिर वो अपने ग्रुप्स में सर्कुलेट करी थी। डोंट केयर।